So hello class 10. Today in this session I am going to take up numerical practice for series and parallel connection. Those who are new to my channel and have been looking this video for the very first time, they can go to my electricity playlist where I have thoroughly explained series and parallel connection, which will help you to move ahead in this session for numerical practice. In this session, I have been taking certain numericals which will help you to understand how do we apply the concepts we have learned for series and parallel connection. And here I have put the questions which have been prominently asked during the exams and help you to gain confidence in numerical solving. So let's begin. So this is the first numerical. This is pretty easy. So मैं आपको बार बार recap करवाते जाऊंगी जो concepts हमने किए थे. First question is saying, show how would you connect two 4 ohms resistors to produce a combined resistance. Combined resistance मतलब effective resistance means total resistance in the circuit of 2 ohms and 8 ohms. तो आपको क्या ध्यान रखना है? What you need to be careful about, that you are having two resistors each of 4 ohms. So what do you have, children? You have two resistors each of 4 ohms, right? And you need to connect them in such a way that in part A you should be getting the value of 2 ohm of the combined resistance, and in part B you should be getting the value of 8 ohm. अब इसे समझने के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको इसके डेरिवेशंस के कंक्लूजन्स पता होने चाहिए. What we have learned in the previous video, that if we are connecting the individual resistors in series, we overall increase the resistance of the circuit, and when we are connecting it in parallel, we overall decrease the resistance of the circuit. तो अब मेरे पास जो वैल्यू है इंडिविजुअल रेजिस्टर की वो 4 ओम है और मुझे कंबाइंड वैल्यू चाहिए 2 ओम. तो खुद से सोच के बताओ कि मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं कि ये 2 ओम हो जाए. और पैरेलल कनेक्शन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इवन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है. सो द ईच रेजिस्टर इज अ 4 ओम और हमें इफेक्टिव रेजिस्टर चाहिए 2 ओम का. तो अगर मैं 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं बच्चा, राइट, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू डू इट इन पैरेलल. अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे क्यों में आएगा तो आप करके भी दिखाएंगे. दिस इज योर 4 ओम and this is your 4 ohm. तो इसका effective resistance, let's say this is R1, let's say this is R2, children. So आप इसको करके दिखाएंगे. इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट. सो 1/4 प्लस 1/4, दैट विल गिव यू 2/4 which is equal to 1/2. So effective resistance, combined resistance आपका क्या आ जाएगा? 2 ohms that is required by us. तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना है. तो मैं ये रेजिस्टर्स को सीरीज में भी कनेक्ट कर देती हूँ. So this is R1, this is R2, this is 4 ohm, this is 4 ohm. If I need to find out the effective resistor, right, then I should be, if I'm connecting them in series, I should add up the resistors which I am having. So which is 4 plus 4, that is equal to 8 ohm. Very simple, right? Good question to make you understand about the basics. Now let us move towards the next question. What is this question saying? You are given two resistor arrangement, right? अब आपको दे रखा है which of the following, question क्या बोल रहा है? Which of the following resistor arrangement A और B has the lower combined resistance? अब इन दोनों में से छोटा combined resistance किसका होगा? अब इसमें तो आपके पास एक ही है, and here you are having the two resistors, right, and that too in parallel. Up, do you need calculation or you don't need calculation? No, children, we absolutely not required to calculate anything over here. Why? Because we know that in parallel connection, the combined resistance is even less than the smallest resistance in the circuit. तो अगर हम second circuit में compare करते हैं तो आपके पास एक 1000 ओम का resistor है, एक आपके पास 10 ओम का resistor है. तो combined resistor की जो value आएगी, that will be less than 10 ohm.
तो अब आप खुद से बता सकते हैं कि किसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगा। ए जो सिंगल रेजिस्टर है उसका तो 10 होगा, और बी में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस लेस देन 10 होगा, विदाउट कैलकुलेटिंग, राइट। सो हियर we can clearly make out that the resistance of B will be less than the resistance of A. It's very simple. It's very simple. हर चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है. Everything you need to understand and how to handle it smartly and minimal possible time. So that's what the smart students do. Now we have this question and be very careful about this question. In this question is having three parts. ये question अगर आपको समझ आ जाता है, I am telling you children कि आप सीरीज और पैरेलल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं चाहे 12th के हैं. Now please understand, three resistors are connected as shown in the diagram. तो आपके पास थ्री रेजिस्टर्स हैं. डायग्राम में इसमें रेजिस्टर्स को नेम नहीं किया गया, तो आप अपनी ईज के लिए हमेशा नेमिंग करेंगे. सबसे पहले सो लेट्स से दिस इज R1, लेट्स से दिस इज R2, लेट्स से दिस इज R3. ठीक है बच्चा, तो हमने क्या किया, तीनों रेजिस्टर्स को नेम कर दिया. आगे चलते हैं. थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्रू 5 ओम रेजिस्टर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग. राइट, 5 ओम के रेजिस्टर से करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. तीनों रेजिस्टर्स के आपको वैल्यू गिवन है विद इन द फिगर, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब आप देख रहे हैं दिस सर्किट हैज अ कॉम्बिनेशन, वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. आप इसमें पैरेलल भी देख पा रहे हैं और आप सीरीज भी देख पा रहे हैं. सीरीज का मतलब होता है सिंगल कंडक्टिंग पाथ, पैरेलल का मतलब होता है मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ, राइट, प्लेंटी ऑफ पाथ. नाउ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड. अब उन्होंने आपको टर्मिनल्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी. ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बताओ और ए सी बताओ. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए. मैं रिवाइज करवा रही हूँ, मैंने इससे पिछली वीडियो में जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर मैं सीरीज कंडक्टिंग पाथ की बात करती हूँ या पैरेलल की बात करती हूँ, सीरीज में आपका करंट डू नॉट डिवाइड, राइट, करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं करता. मैं सिंबल से बता देती हूँ जिससे बच्चों को इजीली रिलेट कर पाए. करंट डू नॉट डिवाइड, क्रॉस का मतलब है डू नॉट डिवाइड, राइट. वेयर एज पोटेंशियल डिवाइड, पोटेंशियल डिवाइड कर देगा. इसको हमें बहुत यूज करना है. ये आपको यूज करना आ जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे. अब यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल पैरेलल सर्किट की बात करते हैं. तो पैरेलल सर्किट के अंदर करंट डिवाइड्स एंड पोटेंशियल डू नॉट डिवाइड, राइट. इस बात को ध्यान रखना है. मैं एक हेल्प बॉक्स के तौर पर आप सबके लिए बना रही हूँ. इफ यू आर अ बिगनर, तो ये बात आपके दिमाग में पैरेलली चलनी चाहिए कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है. सीरीज में सिंगल कंडक्टिंग पाथ रहता है, पैरेलल में प्लेंटी ऑफ कंडक्टिंग पाथ रहते हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है. सो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको कनेक्शन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी हो जाएगा. अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लिखते कैसे हैं, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको अच्छे से सिखा रही हूँ. सिंस R2 इज पैरेलल टू R3, राइट. सो आप क्या करेंगे, आपको पूरे सर्किट का निकालना है, तो एक बार में नहीं निकलेगा, 2 स्टेप्स में निकलेगा. तो पहले आप R2 3 को कंबाइन कर देंगे, तो इसका कंबाइन रेजिस्टेंस हम 1/R2 3 लिखते हैं. सो विच इज 1/R2 प्लस 1/R3. सो R2 क्या है बच्चा, 1/10 प्लस 1/15, राइट. सो दिस इज 30. What is this? This is 30. So that will be 3 plus 2, right? And this will be 5/30, which is 1/6. तो ये आपका R2 3 का वैल्यू आ गया. सो 1/R2 3 का वैल्यू आ गया, तो R2 3 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज 6 ओम्स.
अब ऐसे केस में अगर आप सीबीएसई एस्पिरेंट हैं तो उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आपको सर्किट रीड्रॉ करना है। मीन्स अभी आपने क्या किया, आपने R2 और R3 रेजिस्टर को कंबाइन कर दिया है। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगी बेटा, तो ये सर्किट, लेट मी ड्रॉ इट हियर, इट विल सेव आवर स्पेस ऑन स्क्रीन। अगर मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ तो आपके पास 1 2 3 एंड आपने एक और रेजिस्टर ड्रॉ कर दिया। So this is your R1 now and this is your R2 3। तो आप इसके पॉइंट्स भी हाईलाइट कर देंगे जो टर्मिनल्स हैं। दिस इज A, दिस बिकम्स B एंड दिस बिकम्स C। राइट, इसमें से आपका कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। अब R23 के पास भी कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। अगर आपको पता होता है कि करंट आपका किस में डिवाइड करता है, पैरेलल में डिवाइड करता है, तो अगर यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, AB के थ्रू 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा। बट अब ये मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ आ गए टूवर्ड्स R2 एंड टूवर्ड्स R3। सो लेट्स से जो भी 1 एम्पियर करंट है वो डिवाइड हो गया R2 और R3 में। फिर से आप अपना ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट लाओ, R3 का वैल्यू ज्यादा है तो उसको कम करंट मिलेगा, R2 का वैल्यू कंपैरेटिवली कम है और उसको ज्यादा करंट मिलेगा। अब जितना भी करंट डिवाइड होकर C पे पहुंचेगा वो 1 एम्पियर ही पहुंचेगा, क्योंकि 1 एम्पियर अमंग R2 और R3 डिवाइड हो गया और C तक कितना पहुंचा है, 1 एम्पियर पहुंचा है। ये ध्यान रखेंगे। अब हमने मर्ज कर दिया, हमारी R1 की वैल्यू क्या थी बच्चा, 5 ओम्स, और R23 की वैल्यू आपकी क्या आई है, 6 ओम। तो अब आप क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट में, सिंस R1 is in series with R23, राइट। R1 क्या है, R1 सीरीज में है R23 के साथ। सो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R123, राइट। आप क्या बोल सकते हैं, R1 प्लस R23। सो R1 की वैल्यू क्या है, 5, और R23 की वैल्यू क्या है, 6, विच इज इक्वल टू 11 ओम। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चा, 11 ओम्स, राइट। सो टोटल रेजिस्टेंस हम यहां लिख लेते हैं, दैट इज 11 ohms. I will erase this from my screen because we need it. Total resistance of the circuit is 11 ohms. R is equal to 11 ohms. Now we'll move towards the second question, right? Second part of this question, which says that find the potential difference across AB, means this and this, and the potential difference across AC. So अगर आप AC देखोगे, AC it's coming with the whole circuit, right? Within AC the whole circuit is being fitted, right children? So आप AC देखेंगे तो अगर आपको AC के अक्रॉस निकालना है तो दैट मीन्स आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, और अगर आपको AB के अक्रॉस निकालना है तो फिर आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टर सिर्फ R1 कंसीडर करना है। तो हम निकालते हैं पहले पोटेंशियल अक्रॉस AB, राइट, जिसको हम VAB भी बोल सकते हैं, विच इज गिवन बाय। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आप ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं जो आपको बोलता है V इज इक्वल टू IR। व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, आप पोटेंशियल विद इन दिस पार्ट निकाल रहे हैं तो आपको देखना है कि विद इन AB कितना करंट फ्लो कर रहा है और उसमें रेजिस्टर कौन सा प्लेस्ड है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है AB के अक्रॉस वो आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और जो रेजिस्टर है वो आपका 5 ओम्स है, राइट बच्चा। तो विच इज R1। तो आपके पास करंट आ गया 1 एम्पियर और रेजिस्टर आ गया 5 ओम, विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट। नाउ यू विल फाइंड आउट द पोटेंशियल अक्रॉस AC। अब आप उसको VAC का नाम दे सकते हैं। अब AC के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है और टोटल रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि विद इन AC आपका R1 R2 और R3 है। तो आप जब रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे वो आप टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कंसीडर करेंगे, विच इज योर R123 जो आपने फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट किया था, 1 into 11 ohms, which is equal to 11 volt। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। दिस वी हैव डन, राइट, दिस वी हैव डन द सेकेंड पार्ट। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द थर्ड पार्ट, फाइंड द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स। अदर टू का क्या मतलब है,
5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट दे रखा है विच इज 1 एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा है कि R2 से कितना करंट फ्लो करेगा, लेट से I2 फ्लो करेगा, और R3 से कितना फ्लो करेगा, लेट से I3 करंट फ्लो करके जाएगा। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, आर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपको पता होना चाहिए कि R2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। मींस आपको पोटेंशियल विद इन B टू C चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो पैरेलल में डिवाइड नहीं करता है, राइट। तो जो पोटेंशियल आपका R2 को मिलेगा वही पोटेंशियल आपको आपका R3 को मिलेगा। तो ये पोटेंशियल डिवाइड नहीं करेगा, बट इनको पोटेंशियल मिलेगा कौन सा, जो टर्मिनल B और C के बीच में है। तो वो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है, 11 वोल्ट। और ए बी के अक्रॉस क्या पोटेंशियल है, 5 वोल्ट। अब आप खुद से बताइए बीसी के अक्रॉस कैसे निकालोगे, वी ए सी माइनस वी ए बी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट, अब पहले तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट के लिए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमें थर्ड पार्ट के लिए चाहिए, जिसको हम वी बी सी बोलेंगे, राइट। और वी बी सी जो है आपका, लेट मी, मैं बोल रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा क्लमजी हो गया, ओके। पोटेंशियल अक्रॉस बी सी, so which is given by VBC, so I into, राइट। आप I से भी कर सकते हो और 2 3, तो आपका R23 अगर आप याद रख पा रहे हैं तो आपका R23 आया था 6 ओम्स। तो आप R23 से भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। सो I आपका 1 एम्पियर है, R23 आपका 6 ओम्स आया था, विच विल गिव यू 6 वोल्ट। आपको क्या दे रहा है वो पोटेंशियल, 6 वोल्ट। अब आप क्या करेंगे, आप अपने सर्किट में मार्क कर सकते हैं कि जो आपको R2 के अक्रॉस पोटेंशियल मिलेगा वो 6 वोल्ट मिलेगा, और R3 के पास भी जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए बच्चा, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको करंट निकालना है। तो करंट थ्रू R2, ठीक है। करंट थ्रू R2 की बात करोगे तो करंट क्या होता है, विच इज I2, और I2 आप कैसे देंगे बच्चा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R, राइट। तो अब यहाँ पे V क्या है आपका, VBC, और R क्या है, R2। व्हाट इज VBC, 6, और R2 क्या है आपका 10, दैट इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। क्या आया है वो आपका, 0.6 एम्पियर। नाउ इफ वी मूव फर्दर एंड वी विल फाइंड आउट द करंट थ्रू R3। यहां पे करते हैं करंट थ्रू R3 बच्चा, विच इज गिवन बाय I3। सो R3 को भी पोटेंशियल क्या मिल रहा है, VBC मिल रहा है, अपॉन जो रेजिस्टर है वो R3 है। सो VBC की अगर हम बात करते हैं, राइट, व्हाट इज इट, the potential is 6 volt and the resistor is 5, which is equal to 0.4 ampere. So आपका I3 क्या हो गया, 0.4 एम्पियर, और करंट थ्रू R2 क्या हो गया, which is 0.6 एम्पियर। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, that you have to follow two things, one the rules of series and parallel connection, second the Ohm's law। अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से करनी आती हैं तो आप कभी भी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करेंगे। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका करंट सही आया है या नहीं आया। क्यों? क्योंकि R2 को करंट क्या मिल रहा है, 0.6 एम्पियर, और आपका R3 को करंट क्या मिल रहा है, 0.4 एम्पियर। तो 0.6 प्लस 0.4 गिव्स यू 1 एम्पियर। तो जो पॉइंट सी पे अगर हम एमीटर लगा के चेक करते हैं तो 1 एम्पियर करंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां से सर्किट बिगिन हो रहा था वहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो जो सर्किट का लास्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, वहां पे भी कितना करंट पहुंचना चाहिए, 1 एम्पियर। सो विच शोज दैट वी हैव डन इट करेक्टली। आप खुद एग्जाम में करते हुए अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करो, बोल बोल के करो। जब भी आप क्वेश्चंस करो तब आप जरूर ये चीज बोल बोल के कीजिए कि ये सीरीज है, इसमें करंट डिवाइड नहीं होगा, ये पैरेलल है, इसमें करंट डिवाइड होगा। सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता, पैरेलल में पोटेंशियल सेम
होता है। राइट, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे और ओम्स लॉ यूज करते करते दोनों चीजों को इंटीग्रेट करते हुए आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली कर जाएंगे। नाउ यू नीड टू डू द सेकेंड क्वेश्चन, द सर्किट डायग्राम। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। टोटल रेजिस्टेंस मांग रहा है, टोटल करंट मांग रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस R1 मांग रहा है। तो क्वेश्चन में आपको सर्किट में R1, R2, R3 लेबल करके दे रखा है, टोटल पोटेंशियल आपको दे रखा है विच इज 12 वोल्ट। तो आपको समझना होगा कि R2 and R3 are in parallel and the combination of the two is in series with R1। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि R2 और R3 को सेम पोटेंशियल मिलेगा, बट R1 को डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा। तो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पैरेलल से शुरू करते हैं, क्योंकि हम उस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, सिंस R2 is parallel to R3, therefore 1 upon R23 is equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3. 1 upon 3 plus 1 upon 6, which is equal to 6, 2 plus 1, which is equal to 3 by 6, which is 1 by 2. So आपका R23 will be the reciprocal of 1 by 2, that is equal to 2 ohms. So what is our next step? Our next step is to redraw the circuit. हम ये circuit फिर से redraw करेंगे to show how the circuit changes when we are combining resistor R1, R2 and R3. So this is R1 और ये हमने क्या बना दिया, R23. The current is flowing. This is the battery. Negative terminal, positive terminal. This is R1. This is R23. This is 4 ohm. This is your 2 ohms. Right? R1 is in series with R23. ठीक है, so R123, that is the total resistance of the circuit, is equal to R1 plus R23. So R1 क्या है, 4, R23 क्या है, 2, which is equal to 6 ohms. So R123 is equal to 6 ohms. Understood children? So R123 आपका क्या आ गया, 6 ohms आ गया। So आपका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया आपने। अब आपका सेकंड पार्ट है, आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ओम्स लॉ की हेल्प लोगे। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, टोटल पोटेंशियल आपके पास है। सो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ टोटल करंट I is given by V upon R. V upon R. तो V आपका क्या है, 12 एंड टोटल R आपका क्या है, R123 लेंगे आप, दैट इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो टोटल करंट क्या फ्लो करेगा सर्किट में से, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। So this is how we have calculated the second part of the question. Now children, the potential across R1, right? Potential difference आपको R1 के across निकालना। तो R1 के अक्रॉस निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसकी रेजिस्टर वैल्यू पता है। आपको अगर करंट पता होगा तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। सो टोटल करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और 2 एम्पियर ही किसको मिलेगा, R1 को मिलेगा। तो मुझे थर्ड पार्ट आई एम सॉल्विंग ऑन द टॉप पार्ट ऑफ माई स्क्रीन। सो थर्ड पार्ट इज सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस across R1, right? It is also, you will take help of Ohm's law, which is given by total current, right? Which reaches to R1, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। और आपका R1 की वैल्यू, टोटल करंट आपका 2 है, R1 की वैल्यू आपकी 4 ohms है। So that will give you 8 volt, right? That will give you 8 volt. So आपका टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा बच्चा, 8 volt. So this is across R1, तो हम इसको V1 दे देते हैं ना, so that is 8। अंडरस्टूड, दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉर्ट आउट द क्वेश्चन। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी भी सीबीएसई अपने एग्जाम्स में नहीं देता है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आप इजीली कर पा रहे हैं।
Now let's move towards the last question of this session. This question says that अब आप इस सर्किट को देखो, इस टाइप के सर्किट यूजुअली बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं. हाउ टू हैंडल इट आप समझो. मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो सीरीज का मतलब होता है, सीरीज का मतलब होता है सिंगल कंडक्टिंग पाथ, और पैरेलल का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ कंडक्टिंग पाथ. जो मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ हो जाएंगे तो आपका वो पैरेलल कनेक्शन होगा. तो आपको करंट निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच रेजिस्टर. तो आप ऐसा सर्किट देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सीरीज है या पैरेलल है, तो आप समझेंगे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव है. अगर हम करंट फ्लो चेक करते हैं तो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा. तो नेगेटिव तो वो इधर भी जाके नेगेटिव मिलेगा और इधर भी जाएगा तो नेगेटिव मिलेगा. तो कंडक्टिंग पाथ क्या हो गए, डिवाइड हो गए. तो जब कंडक्टिंग पाथ मल्टीपल निकल के आ रहे हैं तो ये कैसे कनेक्टेड है, हाउ आर दीज टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड, दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब ये तो आपको समझ में आ गया. अब पैरेलल में कनेक्टेड है तो दैट मीन 6 ओम रेजिस्टर को भी 24 वोल्ट मिल रहा होगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं करता है, और 4 ओम वाले को भी 24 वोल्ट ही पोटेंशियल मिल रहा होगा. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है. तो आप किसकी हेल्प लोगे, ओम्स लॉ की हेल्प लोगे. लेट्स से दिस इज R1, लेट्स से दिस इज R2, राइट. तो जब आप R1 और R2 आपने लेबल कर लिया तो आपके लिए इजी हो गया. तो पोटेंशियल दोनों के केस में सेम है. आपको करंट, अब आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, करंट थ्रू, करंट थ्रू R1, राइट. अब अगर आप करंट थ्रू R1 फाइंड आउट करें, विच इज I1, विच इज गिवन बाय V अपॉन R1. तो V क्या है आपका 24, R1 क्या है आपका 6, विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर. अब सिमिलरली आप करंट थ्रू R2 फाइंड आउट करेंगे, विच इज गिवन बाय I2 V अपॉन R2. सो दैट इज 24 अपॉन R2 क्या होगा 4, विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर. बिल्कुल सिंपल. Understood? So with this, I am ending up my today's session. Hope you like my video and you have learned how to solve series and parallel connection. Thank you for today.